Hello, my dear students. Today we are going to discuss a new topic of mathematics. It is very useful for class 9 CBSE students. Area of triangle is a chapter that has been given as Heron's formula as well. हेरोन्स फार्मूला एक नया कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का। हालांकि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पीछे के क्लास से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। पहले थोड़ी देर के लिए हम उन फार्मूलाज की बात करेंगे जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज़ बिफोर हेरोन्स फार्मूला। The popularly known, one of the most popular formula for calculating area is half times base times the height. You might फिर हम उसी बेसिक फार्मूले की मदद से देखेंगे कि हेरोन्स फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक एंड स्टिल द मोस्ट बेसिक। हेरोन्स फार्मूला इज डिराइव्ड ऑन बेसिस ऑफ दिस फार्मूला ओनली। तो उससे पहले बनाए हैं फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर इसमें हम किसी एक साइड को चूज करते हैं, लेट्स से BC, तो इसके लिए अगर हम इसको बेस कंसीडर करें तो इसके लिए हमारा हाइट हो जाता है द वन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। अगर यहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है देन वी कैन कंसीडर द इंटायर बेस BC एज द बेस एंड दिस हाइट AD, let's say call it AD as the perpendicular, and using this we can calculate its area. What if someone insists upon कि नहीं मुझे तो यहाँ से draw करना है perpendicular on this base, so wheresoever you want you can draw the perpendicular to any of the base of the triangle. Let's say हमने इसका नाम दिया BD, और इस केस में अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो विल कंसीडर दिस एज द बेस एंड दिस एज द perpendicular. Anyhow, the perpendicular and base should be making a right angle with each other. Formula still remains same. Whichever base we are considering, the height must be altitude drawn from the corresponding vertex. In case of right angle triangle, we have made a sketch of right angle triangle. Suppose here it is a right angle formed at vertex Q. So any of the two sides, if we take QR as the base, we can take PQ as the perpendicular, or vice versa. If we take this as the perpendicular, this can also, the QR base can also be taken as the height. But if we wish to calculate the hypotenuse as the base, so we'll have to draw an altitude from the corresponding vertex to it, and this can also be taken as the base and this as perpendicular. That depends upon the situation, whichever information has been provided to you. Something very specific is there. If we want to draw a perpendicular on this base YZ, from this will not form the right angle at all. So what is the way out? We can extend, we can get an imaginary extension of this base. For we can draw a perpendicular from the corresponding vertex to this side. Here it is remarkable. You can consider YZ, from Y to Z, this as the base, but the perpendicular is not directly in contact with the base, and still these two will be considered as the perpendicular and base while calculating area of this triangle. You might, in these two cases, in these few cases, you can see the perpendicular is outside the base. There is no direct contact between base and perpendicular, but still we can use the same formula, half into base into height, as to calculate area of this triangle. Yes, one may find altitude passing through this region of the circle is this. So if you'll consider this XZ as the base, then the perpendicular drawn from Y to this side will be taken as the height. And I hope you must have understood the things we have discussed till now.
triangle of any random size and type. I don't know what type of triangle is this. Naming its vertices as So this is a triangle of any type, and what I will do, I will draw a perpendicular from A to the side BC of this triangle. And Heron's formula. What is the purpose of Heron's formula? At times कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ट्रायंगल्स दिए होते हैं जिसका साइड हमको पता होता है, ए कहते हैं अपोजिट टू दैट वर्टेक्स सी। ये एक कन्वेंशन मैच करने के लिए बस मैं कह रहा हूं, दिस इज बी एंड दिस इज ए। If three sides has been given and nothing else like the perpendicular drawn to this side BC, that is A, has been given, उस केस में हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे पता करेंगे? अगर हमें सिर्फ तीनों साइड पता हो और किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ना पता हो, तो हमारे इस चैप्टर का पर्पस यही है कि हम तीनों साइड की मदद से सिर्फ तीनों साइड की मदद से कैसे इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी, हमने कुछ वेरिएबल्स एज्यूम किए। लेट्स से इस हाइट के लिए हमने एक वेरिएबल एज्यूम किया h, एंड दैट हैज़ डिवाइडेड दिस ट्रायंगल इनटू टू राइट ट्रायंगल्स। हम कह सकते हैं कि इस हाइट की वजह से ये ट्रायंगल दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। अगर हमें इसका एरिया चाहिए, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू ए इंटू एच। अब मैंने कहा h कहीं अवेलेबल नहीं है, हमें ए बी सी दिया हुआ है, सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन के नाम पे तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो हम इस h को कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हमारा पर्पस है। तो हमने यहाँ देखा कि h ड्रॉ करने से ये फिगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में बट गया है, और हम कोशिश करेंगे h को दूसरे वेरिएबल्स से रिलेट करने की। लेट्स से फॉर दिस ट्रायंगल, मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ D। लेट्स से फॉर दिस ट्रायंगल 1, फॉर ट्रायंगल ABD, और जिसको मैंने ट्रायंगल 1 कहा है, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से एक्सप्रेशन लिखते हैं। h को हम इंडिपेंडेंटली लिखने की कोशिश करते हैं। तो द फॉर्मूला विल बिकम h स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर, विच इज़ द हाइपोटेनस फॉर दिस ट्रायंगल, एंड माइनस, लेट्स से हमने इस वाले साइड के लिए एक और वेरिएबल एज्यूम कर लिया x, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। और अगर ये वाला पोर्शन BD अगर हमारा x है, तो हम AC के बारे में आराम से कह सकते हैं दिस मस्ट बी a माइनस एक्स, इजंट दिस। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि अगर ये पूरा a लेंथ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ a लेंथ है, और इसमें से एक पोर्शन हमने x सपोज कर लिया, तो दूसरा पोर्शन अपने आप a माइनस एक्स हो जाता है। तो नाउ फॉर दिस ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल ADC, मतलब हमारा इस पॉइंट पे हमने इस परपेंडिकुलर पॉइंट पे पॉइंट D लिया था, ये C है। तो ADC यानी जिसको ट्रायंगल 2 कहा हमने, उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। और अगेन हेयर h विल बी रिटन एज h स्क्वायर इक्वल्स डिफरेंस ऑफ b स्क्वायर एंड द बेस इज a माइनस एक्स एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। आई होप ये तुमने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा है, जिसमें कहा जाता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। हालांकि ये हाइपोटेनस ये वाला वेरिएबल नहीं है, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड। और ये हाइपोटेनस का मतलब होता है द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आई मीन राइट एंगल, दैट इज़ द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ हमारे हाइपोटेनस का ये मतलब होता है। और इसमें अगर हम
यहाँ ये इस बेस की बात करें, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसा आपने कई बार यूज़ किया होगा। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसी को यूज़ करके हमने ये दोनों इक्वेशन लिखे हैं। और इन दोनों से आपको पता चलता है कि ये दोनों एच स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी अगर मैं इन दोनों में से अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू z, तो इन दोनों से कंक्लूड कर सकते हैं हम दैट मीन्स y इज इक्वल टू z, क्योंकि दोनों x के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ दोनों h स्क्वायर के इक्वल हैं तो दोनों को आपस में इक्वल कराते हैं एंड लिखते हैं अ स्टेटमेंट लाइक सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। थोड़ा सा राइट हैंड साइड को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं। एक्सपेंडिंग द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब यहाँ पे कई बार हम सोच सकते हैं कि अगर हमने इसको दो स्क्वायर के डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाते तो क्या होता, ज़्यादा अच्छा होता। बट मैंने देखा कि यहाँ एक वेरिएबल हमारा रिमूव हो जा रहा है, इस वजह से हमने ऐसा किया। एंड राइटिंग बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखें कि एक्स स्क्वायर्ड दोनों साइड सेम साइन के साथ है, तो वी कैन कैंसल देम आउट। मैग्नीट्यूड में भी वैसे ही हैं और मैग्नीट्यूड में भी वैसा ही है, और फिर कहें कि साइन भी सेम है तो अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो साइन अपोजिट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाता है। दैट आई नीड नॉट टू एक्सप्रेस इट अगेन एंड अगेन। एंड देन आई एम ट्राइंग टू राइट 2ax। अगर मैं 2ax को इस तरफ कर लूँ, 2ax को अगर मैं राइट साइड कर लूँ तो ये हो जाता है 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर्ड माइनस सी स्क्वायर्ड। और फिर इस x को अगर मैं कहना चाहूँ तो ये बन जाता है बी स्क्वायर माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। okay, let's say this is the value of x we have obtained। एक वैल्यू जो वेरिएबल हमारा x हमने एज्यूम किया था वो ABC के टर्म में हमारा एक्सप्रेस हो चुका है। और अब हम x को किसी और में प्लेस करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं x का वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। तो इसमें हम प्लेस करते हैं वैल्यू ऑफ x एंड राइटिंग एच स्क्वायर एज सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2a and whole square of it। Now we can see these two terms are a square. These two terms are a square of something. So difference of two square, you must remember a formula, a square minus b square can easily be written as a plus b times a minus b। तो हम उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे लाइक c प्लस b माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2a। और सेकेंड फैक्टर हम लिखेंगे c माइनस बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2a। हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया और थोड़ा सा अब और आगे काम करते हैं तो ये बन जाता है 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2a। और दूसरे फैक्टर पे काम करते हैं तो ये दिखता है द सेम वे 2ac माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2a। अब थोड़ा सा और एक्सपेंशन करते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac over 2a, the first factor, and the second one is a square plus c square plus 2ac माइनस बी स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी जैसा इसमें दिख रहा था कि इसको हम यूटिलाइज करेंगे आइडेंटिटी के फॉर्म में, हमारा काम काफ़ी इजीली हो जाएगा। और ओ सॉरी, इसको हमने माइनस 2ac भी लिखना चाहिए था। नाउ मूविंग अहेड, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं और फिर हम पहुंच जाते हैं इस जगह पे जहाँ पे हम इसको फिर से दो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिखा सकें डिफरेंस। दिस इज बी स्क्वायर माइनस दिस इज आइडेंटिटी आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी, तो दिस इज ए माइनस सी स्क्वायर ओवर इट एंड अपॉन 2a। दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्शन फैक्टर एंड दिस इज a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a। अब फिर थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंशन करें तो ये बनता है b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर b प्लस ए माइनस सी इंटू b माइनस ए प्लस सी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें b प्लस a माइनस सी तो ये निकल के देखो अपने आप आ जाता है b प्लस a माइनस सी। और अगर हम करें b माइनस a माइनस सी तो ये निकल के आ जाता है b माइनस a प्लस सी। तो वही दोनों चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, आपको शायद क्लियर हो गया हो। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट term, I mean first factor, and this one is a plus c plus b into a plus c minus b, is simple as that. Now यहाँ से थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। अगर मैं कहूँ कि इसमें एक सिमेट्री जैसा मुझे दिख रहा है, उस सिमेट्री को यूज़ करें। अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी की जगह एज्यूम करने के लिए दिया जाए a प्लस बी प्लस सी, अगर एज्यूम करने के लिए दिया जाए 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, ए बी सी साइड्स ही है ना, तो इसकी जगह अगर हम 2s लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी की जगह, तो बाकी को भी हम उस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी माइनस सी, और इस वाले को लिख सकता हूं माइनस a प्लस बी प्लस सी, और ये वाला तो है ही है, अब सारे प्रोडक्ट में ही हैं तो मैं उनको ऐसे ही लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी। थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेने से a माइनस बी प्लस सी, और नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है 2a टाइम्स 2a। अब थोड़ा इसको देखते हैं कि अगर हम इसमें ऐड कर दें c, इसमें ऐड कर दें c,
तो ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी दिखने लगे और माइनस 2c प्लस सी वो वैल्यू सेम रह जाएगा। इससे हुआ क्या, ये सिमेट्रिकली a b c हमको इसमें अवेलेबल हो गया। और ठीक इसी तरह इसमें अगर हम a प्लस कर दें तो ये भी बन के आ जाता है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। a अगर हम प्लस करते हैं तो a माइनस भी करना होता है हमें, तो वही काम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमारा ये तो है ही है a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते। और बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी उसमें लाने के लिए, जिसको हमने एक डिफरेंट वेरिएबल से इंडिकेट किया हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। क्या नहीं लिख सकते, माइनस 2b प्लस बी माइनस बी हो जाता है। तो वो हमने सेम रखा है, और डिनोमिनेटर में इसको लेट्स से हमने 4a स्क्वायर कह ही दिया, क्या दिक्कत है। अब फिर से देखो आप ड्रैग करके इस पेज पे कि एक काम हमने किया था कि a प्लस बी प्लस सी को 2s एज्यूम किया था। यू कैन लुक एट सी, a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s हम यूज़ कर ले जाते हैं। सो द एक्सप्रेशन विल बिकम 2s माइनस 2c टाइम्स 2s माइनस 2a टाइम्स 2s टाइम्स 2s माइनस 2b अपॉन 4a स्क्वायर। और इन सभी में से अगर हम 2 कॉमन ले आते हैं तो ये बन जाता है 2 इंटू एस माइनस सी, ये बन जाता है 2 इंटू एस माइनस ए, ये बन जाता है 2 इंटू एस, और ये बन जाता है 2 इंटू एस माइनस बी ओवर 4a स्क्वायर। अब देखो 2 से आप इस 4 को कैंसिल कर दे सकते हो, और रिजल्ट हमारा आ जाता है, इसके बाद ये आ जाता है थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर में अब हम लिखना चाहेंगे। ये हो जाता है हमारा 4s 2 टाइम्स 2, दो न्यूमेरल 2 बचा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों को साथ जमा कर लिया हमने और इसको 4 लिख लिया। और साइक्लिक ऑर्डर में पहले s माइनस ए लिख लेते हैं, s माइनस बी, चूँकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो ऑर्डर फ्री होता है। ये बस थोड़ा सा सिमेट्रिक और अरेंज्ड ऑर्गेनाइज दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एंड देयर इज a स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। अब देखो ये काम हम कर क्यों रहे थे इतनी देर से, what we have been chasing, what we have been following since beginning। हम लोगों ने h स्क्वायर के वैल्यू के लिए यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये करते 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 इसमें एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करते करते यहाँ एक और वेरिएबल हमने असाइन किया, और हमने h स्क्वायर से जो जर्नी शुरू की थी हमने देखा कि वो h स्क्वायर निकल के आ गया है इतना, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। और अगर हम h को यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ओवर द इंटायर एक्सप्रेशन, दैट इज 4s इंटू s माइनस ए टाइम्स s माइनस बी टाइम्स s माइनस सी, और इसके नीचे है a स्क्वायर। अब इनमें से जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर सा दिख रहा है उसको मैं बदल देता हूँ, और परफेक्ट स्क्वायर सा मुझे दिख रहा है ये 4, तो ये बाहर h इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट ये 2 हो जाता है, और a स्क्वायर का अंडर रूट a हो जाता है। ये दोनों रैशनलाइज हो जाते हैं, बाकी सारे इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही बेचारों को रहना पड़ता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये h का एक्सप्रेशन आ जाता है। याद करो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, इस h के एक्सप्रेशन से नहीं, बल्कि हम लोग एरिया से इंटरेस्टेड थे। अगर h के इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से एक्सप्रेशन को ले आते हैं जहाँ से हमने अपनी कहानी शुरू की थी,
और इसको अब ड्रैग करते हैं तो आप देखो h हमने फाइंड आउट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ ABC। h के फॉर्मूले में ABC है। आप कहोगे s है सर, तो s भी कुछ और नहीं बल्कि ABC ही है। s का हमने बताया हुआ है कि s इज इक्वल टू ये है सेमी पेरीमीटर a प्लस सी बाई 2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी को हमने 2s एज्यूम किया था। तो ये सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ है s, यानी ABC का ही डेरिवेटिव है, कुछ और नहीं है। और अब अगर आप कहोगे कि मुझे एरिया बताओ, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ इनटू व्हाट इज द बेस, दैट इज a इंटू h। और h के इस वैल्यू को आप रखो, आप h के इस वैल्यू को रखो हाफ इंटू एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू 2 बाई ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ h। देख लो यहाँ से h का वैल्यू हम लिख रहे हैं अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और आप देखें यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाता है, a कैंसिल हो जाता है। तो ये है हेरोन्स फार्मूला जो निकल के आता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये वो फार्मूला है जब सिर्फ साइड के पता होने से आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हो, अगर किसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर अवेलेबल ना हो तो भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के थ्रू अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको कोई इसी तरह का टॉपिक चाहिए जिस पे मैं आपको क्लियर करके बता सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजो, मैं बिल्कुल पर्टिकुलरली उसको रीड करूंगा और उस टॉपिक पे वीडियो बना के भेजूंगा। और ये है आपका, और शेयर और लाइक आप कर दें। मैं बार बार नहीं बोलता, शायद ये बोर करती है बात, बट मुझे पसंद आएगा, आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मैं अप्रिशिएटेड भी फील करूँगा और इससे फ़ायदा